So in some of our last videos for class 12, we have discussed how male and female gametes are formed in plants, in flowering plants. Now, how they are going to meet together before fertilization so that they can form seed. हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि मेल और फीमेल गैमेट व्हेन दे फ्यूज दे फॉर्म सीड. नाउ इससे पहले बीच में बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसमें से एक इवेंट है पॉलिनेशन, राइट. Now how they are going to meet, how that male and female gamete is going to meet. Now male and female gametes of plants are not motile. In some animals, in human beings, not some, in human beings generally male gametes are motile. They swim to reach to the part where the female gametes are produced. But if we see the plants, they are having non-motile gametes, hence they require this pollination, a process called as pollination, which is not for animals. So what is this process? Pollination is a process of transfer. Pollination is a process of transfer of pollen grain from mature anther to receptive stigma. Now, why I am saying pollen grains are actually passing on? Pollen grains are passing on from mature anther, क्योंकि mature anther डिहाइज करेगा और उसमें से माइक्रोस्पोर या pollen grain निकल कर आएंगे. मेल गैमेट्स नहीं ट्रांसफर होते हैं, बट एक्चुअली pollen grains जो हैं they transfer on the receptive stigma. Now inside the receptive are also the compatible stigma. As pollen grain reaches by a process of pollination, these pollen grains, when they find a compatible stigma, they reach on. If that surface, if that stigma is receptive, they start to grow from gympore, and this growth involves the formation of male gamete inside also, and this forms male gamete. When it reaches to the ovule where the female gamete is going to produce, these gamete will emerge out from the pollen grain and enters inside the embryo sac to fuse. Okay, so pollination is an event which is required in flowering plants so that pollen grain can be transferred to the receptive stigma from mature anther. Okay, on the basis how they are transferring, from where they are transferring, they can be divided into self-pollination and cross-pollination. These are non-scientific general terms we will be using because it is in 12th class. We are using some more scientific terms also for this terms. So self-pollination is of two types. Further it can be divided into two types: autogamy and ketonogamy. Cross-pollination is only of one type on the basis of where the pollen is going to transfer: xenogamy. And it is also known as, because it is auto, it is allogamy. Now self and cross, what does that mean actually? When the pollen grain that is transferred to stigma are genetically similar, that they are of same plant, either they are from same flower or they are from different flower, then this is called as self-pollination. That means they are genetically similar. So the gametes are genetically similar. They are from same plant. They should be from the same plant. Genetically similar. But in cross-pollination, if we see, gametes are not genetically similar.
not genetically similar. They are not at all genetically similar. Now, the cross pollination not involve transfer of pollen grain from anther to the stigma of different species. होगा एक ही स्पीशीज़ में पॉलिनेशन हो एक ही स्पीशीज़ के अंदर सकता है, ऐसा नहीं है एक प्लांट की स्पीशीज़ दूसरे प्लांट को पॉलिनेट करने लग जाए। हम बोल रहे हैं कि रोज़ प्लांट जो है वो गुड़हल के फ्लावर को भी पॉलिनेट कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। पॉलन कैन रीच टू द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा, हो सकता है कि पॉलन पहुंच जाए गलती से स्टिग्मा पे, गलत स्टिग्मा पे, बट पॉलन ट्यूब बाहर नहीं आएगी, ग्रो नहीं करेगी जब तक वो शुगरी कंटेंट जो कि एक रिसेप्टिव स्टिग्मा देती है, कंपैटिबल स्टिग्मा देती है, वो रिलीज ही नहीं करेगी। ओके, सो डिफरेंट स्पीशीज दोनों में से कोई भी केस नहीं होगा, बट डिफरेंट प्लांट एंड सिमिलर प्लांट ज़रूर है। ओके, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली नॉट सिमिलर. So let's see different type of pollination scientifically. What are they mean? Autogamy. It is transfer of pollen grain, transfer of pollen grains to stigma of same flower. एक ही फ्लावर होगा, and in that case the flower should necessarily bisexual. A flower should be bisexual. Flower तो bisexual होगा ही इस केस में, right? And a very general example, hibiscus, it is a very general example. Bisexual flower इसका होगा, flower bisexual ही होगा. Flower bisexual है तो plant monoecious ही होगा, क्योंकि generally monoecious मतलब that single thallus contain सेम जो है सिंगल थैलस कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो प्लांट जो है वो इसमें मोनोइशियस ही होगा, मोनोइशियस, राइट. नाउ इफ वी सी इन गिटोनोगैमी, व्हाट हैपेंस इन दिस, हाउ इट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑटोगैमी. नाउ हियर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one flower to other flower to stigma of other flower of same plant. Now in that case there is some different thing that I need to tell you here, that in that case the flower need not to be bisexual. हो भी सकता है कि bisexual है, and it can happen कि bisexual तो है, लेकिन self incompatibility, हम अभी ये term use करने वाले आगे, कि अपने ही दूसरे जेनेटिक पार्ट से जो है इनकम्पैटिबल है, मेट नहीं कर सकता. तो फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल और कैन बी यूनिसेक्सुअल. इसमें बायसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, एनी ऑफ द केस, कोई भी केस हो सकता है. बायसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल केस भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरह का फ्लावर जो है ये हो सकता है. और अगर ये बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल का केस है बट प्लांट विल बी बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है बट प्लांट तो मोनोइशियस ही होगा, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है जा रहा है वो तो अपने ही प्लांट के किसी और फ्लावर पे जा रहा है, तो प्लांट तो मोनोइशियस ही होगा. मोनोइशियस मीन्स अ प्लांट विच इज़ हैविंग बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. सो मेल एंड फीमेल दोनों ही होंगे. ऐसा हो सकता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल ना हो, फ्लावर स्टेमिनेट या पिस्टिलेट हो, यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन प्लांट मोनोइशियस ही होगा. ओके, सो समटाइम्स दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड दैट गिटोनोगैमी इज functionally it is a cross pollination, but genetically it is an self pollination. अब ये तो हमने देख लिया, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो उसको किसी भी तरह का ज़रूरी हो सकता है कि अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना पड़ रहा है
then it require a pollinating agent definitely. Or if require pollinating agent, then it will be coming in this category cross pollination. But we know it is between the similar plant, so genetically it is self pollination. Now last but not the least, xenogamy. Now what happened in the xenogamy? Now आप understand तो यहाँ तक कर ही गए होंगे. Cross pollination or xenogamy or allogamy is transfer of pollen grain to stigma of flower of other plant of same species same होगी, and this is a required condition for pollination to takes place. pollination के होने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए. स्पीशीज तो ज़रूर सेम होगी, लेकिन एलोगेमी, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होके जाएंगे स्टिग्मा जो कि अलग है, यानी किसी और प्लांट की स्टिग्मा है. ओके, ना इसके अंदर प्लांट कैसा होगा? So this can be again, the flower can be bisexual, the flower can be unisexual also. ठीक है, ये जो गिटोनोगेमी है बिल्कुल उसी तरह का केस है. भाई ऐसा हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबल है, नहीं कम्पीट कर पा रहा, कंपैटिबल बना पा रहा अपने ही स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने के लिए, तो प्लांट विल बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करें, क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल है और वो स्टेमिनेट है, इट नीड टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन. अगर वो पेस्टलेट है तो उसको ज़रूर दूसरे ही प्लांट से रिसीव करने पड़ेंगे, दूसरे ही फ्लावर से रिसीव करने पड़ेंगे. और प्लांट भी डायोशियस हो सकता है और मोनोइशियस भी हो सकता है. दोनों में से कोई भी केस जो है वो हो सकता है, डायोशियस हो या मोनोइशियस हो, इसमें से कोई सा भी केस इसमें हो सकता है. सो दैट्स अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. सेल्फ एंड क्रॉस. सेल्फ में जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्रॉस में जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि एक ऑफस्प्रिंग जो बने वो डिफरेंट बने. अब हम देखने वाले हैं कि इसकी क्या खासियत है और क्या लिमिटेशन है और इसकी क्या खासियत है, हमें ये देखना है. Now, so there are some pollinations which are desirable and some type of pollination which are not preferred in the environment. So plant have some devices that they can occur off so that they can reach to the advantageous situation. तो self pollination के अंदर क्यों एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेफर किया जाता है, प्लांट्स क्यों कभी सेल्फ पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं? एक ये इजी टू ट्रांसफ़र है और इसे कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की इसको ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, बट हम ये नहीं लिख सकते कि कभी भी नहीं होती. मे एंड मे नॉट, हमें ये लिखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने दो टाइप देखे थे. ऑटोगैमी के अंदर इसको ज़रूरत नहीं होती, बट गिटोनोगैमी में ज़रूरत हो सकती है. तो उसको ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, कम टाइम में वो पॉलिनेट कर लेंगे. दूसरा डिज़ायरेबल है. जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में होते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन रीअकर, वापस आ सकते हैं, कैन रीअकर. बट क्रॉप इम्प्रूवमेंट के मेथड से अगर देखा जाए तो कई बार होता क्या है कि सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज समटाइम्स शो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. बार बार एक ही तरह के डिसाइरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आने की वजह से व्हेन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एवोल्यूशन दे विल नॉट अडैप्ट. जब कभी कभी एवोल्यूशन के चांसेस भी होते हैं तब वो अडैप्ट करने में असफल रहते हैं. अब ऐसा क्यों? वाई दे आर? बिकॉज दे हैव सेम जीन्स एज देयर पेरेंट्स, दे हैव नथिंग न्यू. सो फॉर दैट टू prevent any kind of inbreeding depression, inbreeding depression का मतलब होता है जब more than 3 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे या फिर
अब कहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहे जिसमें किसी भी तरह का वेरिएशन ना आए, तो उस तरह की स्पीशीज़ जो प्लांट स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है, दैट विल शो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन दैट इट विल हैव सम no adaptation feature, no adaptive feature, and it will not going to evolve. That will show some inbreeding depression. This inbreeding depression can be overcome by some cross pollination devices or outbreeding devices. तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिजर्व करते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। नेचुरली ये दोनों चीज़ें होती रहती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दोनों कर सकते हैं। नेचुरली ये दोनों प्रोसेस हैं। कई बार सेल्फ पॉलिनेशन पे क्रॉस पॉलिनेशन भी प्रेफर की जाती है। सो इन सेल्फ पॉलिनेशन there are some devices which preserve self pollination. In some plants we have two different type of flowers. So some are called as cleistogamous flowers and other are called as chesmogamous flowers. So there is different type of pollination they want. तो कुछ प्लांट्स के अंदर दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लेस्टोगैमस, चेस्मोगैमस। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वॉयला, कॉमिलिना। कुछ फ्लावर्स उसके क्लेस्टोगैमस होते हैं, कुछ चेस्मोगैमस होते हैं, दोनों ही बाइसेक्सुअल होते हैं। बट सम प्रिजर्व सेल्फ पॉलिनेशन एंड सम वांट टू प्रिजर्व क्रॉस पॉलिनेशन फॉर देम। क्लेस्टोगैमस फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन है वो बड में ही हो जाता है। जब फ्लावर अपने बड स्टेज में होता है तभी उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। आपने कुछ ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे, एक ऑरेंज कलर का फ्लावर भी आपके घर में उगता है, हेमिलीना उसका नाम है, बट हिंदी में क्या नाम है आई रियली नॉट हैव दैट, बट वो क्लोज ही रहेगा, वो कभी भी 5 पत्तियों में वो इस तरह से खिलेगा ही नहीं। ऐसे फ्लावर्स के अंदर बड पॉलिनेशन होता है, मतलब पहले ही फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और अंदर ही उसके खिलने से पहले ही उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो चुका है। दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स इन विच बड पॉलिनेशन, इन फ्लावर विच डू नॉट ओपन, इफ आई कैन से फ्लावर विच डू नॉट opens up before pollination। और एक और टर्म हमें यहाँ ऐड कर देनी चाहिए कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्लोज रह के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट रिमेन क्लोज बिफोर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, राइट, और दे रिमेन इन बड पॉलिनेशन जैसे हो जाता है। ये एक और इवेंट है, बड पॉलिनेशन भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिजर्व करता है। अगर पॉलिनेशन बड स्टेज में हो जाता है, बाद में फ्लावर खिलता है, तो एक अलग केस है। क्लेस्टोगैमस के अंदर क्या होता है, फ्लावर खिलता ही नहीं है, हमेशा ही क्लोज रहता है। तो फ्लावर जब हमेशा क्लोज रहेगा तो इट इज़ एग्जाम्पल क्लेस्टोगैमस फ्लावर। जब बड के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा और बाद में फ्लावर खिलेगा, दैट इज़ बड पॉलिनेशन। These two devices are preserving self-pollination because it is having capacity to reproduce the desirable characteristics. But as I already told you that there are some cases in which inbreeding depression in the products of the plant has been seen। मतलब जो plants के product निकलते हैं उसमें कुछ भी adaptation नहीं होती, कुछ भी नया नहीं होता, diversity नहीं होती, amount of organism ज़्यादा नहीं होता। कई बार जो डिजीज्ड प्लांट है वही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और प्लांट में डिजीज एज सच रिमेन रहती है। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कुछ प्लांट्स जो हैं वो भी रखते हैं। तो जैसे कॉमिलिना और वायोला हमने बताया था शुरू में, चेस्मोगैमस फ्लावर उन्हीं में से एक फ्लावर होते हैं, वहाँ फ्लावर ओपन होते हैं। सो हियर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एक्सपोज्ड have exposed stamen and pistil। stamen and pistil exposed होते हैं इसके। ये चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं जो डेफिनेटली आउटब्रीडिंग करना चाह रहे हैं, तभी उनके क्लोज नहीं है, ओपन है,
और दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट इसी लाइन में हमारा बनता है आउटब्रीडिंग डिवाइस, क्योंकि हमने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिजर्व करने वाले डिवाइस तो देख लिए। आउटब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग जो डिवाइस है उसमें कुछ और है यहाँ पर। चेस्मोगेमस फ्लावर यहाँ पर एक हो गया। एक आपका होता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली यहाँ आप समझ गए होंगे, स्टाइल यानी जो स्टाइल है आपका, जो स्टिग्मा का जो स्टाइल है फ्लावर के अंदर, ये आपका फ्लावर है, इसमें एंथर का जो लेंथ है, जो एंथर आपका लेंथ रखता है, उससे या तो स्टाइल बड़ी होगी बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ही छोटी होगी। जो स्टाइल का लेंथ है वो छोटा या बड़ा होगा, सो दैट इट कैन नॉट रीच टू द स्टिग्मा के उसमें रेंज में ना रहे। तो इस वजह से बाइसेक्सुअल फ्लावर को डेफिनेटली इट हैव टू गो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। So that is heterostyly, different size or shape of style are present. स्टाइल जो है वो अलग अलग तरह की होंगी, स्टिग्मा भी अलग अलग शेप की होंगी। इसके बाद एक आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब दो तरह का गैमेट फॉर्मेशन। जब तक पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो जाते, दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज द मेल गैमेट। इसी तरह से जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाती, दे आर नॉट गोइंग टू रिसीव द मेल गैमेट। सो दे बोथ नीड टू बी रिसेप्टिव एंड सिंक्रोनाइज देयर मैच्योरिटी एट सेम टाइम। तो जब ऐसा नहीं होता है तब भी उनको क्रॉस पॉलिनेशन जैसे इवेंट को करना पड़ता है। सो दैट इज़, या तो पहले एंड्रोशियम डेवलप हो जाएगा कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री, या फिर पहले गाइनोशियम डेवलप हो जाएगा कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी। Okay, there are many other methods. Next is Hercogamy is basically nothing but actually a type of same thing, Dicogamy, heterostyly की तरह ही है। यहाँ पर physical barrier होते हैं in between the anther and the stigma for their position। उनकी position इस तरह की होती है that they cannot, pollen grain cannot shed off on the stigma, stigma पे shed off हो ही नहीं पाते। So this is actually a physical barrier, पोजिशनल बैरियर होता है ये, फिजिकल बैरियर। ओके, सो वी हैव डन hercogamy which is physical barrier, we have done dicogamy which is developmental barrier, जहाँ पर प्रोटोएंड्री या तो एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाएगा या गाइनोशियम पहले डेवलप हो जाएगा। वी हैव डिफरेंस इन शेप, हेट्रोस्टाइली शेप और साइज़ जो है वो स्टाइल का, स्टिग्मा का अलग अलग होगा कंपेरेटिव टू द एंथर शेप एंड साइज। देन चेस्मोगेमस फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो ओपन अप होगा, एक्सपोज होगा फॉर द पॉलिनेटिंग एजेंट टू कम। द अदर मेथड ऑल्सो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन यहीं रुकता नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन के यहाँ और मेथड्स होते हैं विच इज़ वन ऑफ द स्पेशल डिवाइसेस जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। नंबर 1, सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ स्टेराइल हो जाए, मीन्स इट विल नॉट गोइंग टू पॉलिनेट द pollen grain of the stigma or pollen grain of their own flower, then this is known as self sterility or self incompatibility. Now इस तरह का self sterility कई बार artificially भी बनाया जाता है, and that is बनाया जाता है artificially by a process called as emasculation and bagging. कई बार आर्टिफिशियली भी ये बनाया जाता है। जब ये कंडीशन आर्टिफिशियली की जाती है सो दैट दे कैन हैव
ये आर्टिफिशियली इसलिए किया जाता है ताकि एक डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन जो है वो बनाया जा सके, यानी ऐसा आउटब्रीडिंग डिवाइस, ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन जो कि आर्टिफिशियली जनरेट किया गया हो, दैट इज़ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, दैट इज़ बाय द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट हैपन्स इन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, उसके बाद उसमें कुछ जनरल बातें। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, हमने बात कही मैस्कुलेशन, और आगे है ई। जब भी ऐसे कुछ अपोजिट लग जाता है वर्ड, एक ई लग जाता है, दैट मीन्स हम मैस्कुलेशन को हटा रहे हैं, यानी मेलनेस को हटा रहे हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से उसका पॉलन ग्रेन रिमूव करना, रिमूवल ऑफ मेलनेस और पॉलन ग्रेन बाय फोर्सेप्स from a bisexual flower is called as emasculation। आप सोचिए अगर ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हो रहा होता और वो पिस्टिलेट होता तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है तो भी इमैस्कुलेशन की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन सेकेंड प्रोसेस क्या है, बैगिंग। ये सेकेंड आर्टिफिशियल प्रोसेस जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का ही एक मेथड है फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप। बैगिंग इज अनदर डिवाइस। नाउ बैगिंग के अंदर क्या होता है, विद appropriate length of, with a appropriate size of butter paper, stigma is covered so that contamination ना हो, covered to prevent contamination of any other pollen grain। किसी भी तरह का दूसरा पॉलन ग्रेन आकर पॉलिनेट ना कर जाए उसको। इन दैट मीन टाइम वी आर एडिंग अवर डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन, कोई और पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट ना कर जाए। फॉर दैट द बैगिंग प्रोसेस इज बीइंग डन। नाउ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आर आर्टिफिशियल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड ऑल अदर chesmogamous, heterostyle, dicogamy, hercogamy, and also that self sterility all are natural type of outbreeding devices. Emasculation and bagging is a device which is artificial. For unisexual flower ये वाला स्टेप जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए नहीं होगा और बाइसेक्सुअल के लिए दोनों ही होंगे। बाइसेक्सुअल के लिए दोनों ही होंगे, यूनिसेक्सुअल के लिए ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ये वाला यूनिसेक्सुअल के लिए भी है। ओके, so that's about these pollination event. Also सेल्फ पॉलिनेशन भी सिर्फ एक ही तरह का रोका जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, दैट इज़ ऑटोगैमी। गिटोनोगैमी हम तब भी नहीं रोक सकते, वो सेल्फ पॉलिनेशन फिर भी हो सकता है, बिकॉज उसमें फिर भी जेनेटिकली सिमिलर ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिफरेंस, एनवायरमेंटल डिफरेंस आ जाते हैं। सो दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय दीज मेथड्स। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपके ये हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिजर्व करने के लिए आपका ये मेथड है। क्यों प्रिवेंट करते हैं, क्यों प्रिजर्व करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस pollinating agent, because if we are doing cross pollination we require an agent, and in that we are going to discuss in next class. Thank you.